Good evening, child. So today again I am with this session of quadratic equation, lecture 3 with you. And so far I have discussed relationship between sum of the roots, product of the roots, as well as framing equations when roots are given and when sum and products are given. So framing equation was done. Then the important topic which I discussed in previous lecture was nature of roots. As I told you, discriminant is very important part, and in previous lecture I discussed that if d is greater than 0, then roots are real and distinct. If d is equal to 0, roots are equal and real, and if d is less than 0, that is beyond the scope of class 10th. But still I discussed that that will give you unreal roots. You can just consider opposite of these situations. All these situations can be put inversely also. As I say, some sums will be based on mm, the condition. The condition says find the value of a constant when roots are real. When roots are equal. Quadratic equation लिख लेते हैं यहाँ, and this is lecture 3 on that concurrent topic. So when roots are real, we can say two things. Real roots can happen in two cases: when d is greater than 0 or d is equal to 0. So I'll put the condition that d is greater than equal to 0 when roots are real. When roots are equal or coincidental, this is the only case when d is equal to 0. So in this way, the sums will be related to finding some constant k when roots are real, roots are equal or coincidental. So if roots are equal given to you, then you will say d is equal to 0 and will involve the constant into that equation and will solve for that constant. The value of that constant will come out. At the same time, if a root is real, that can be in two cases: when d is greater than 0 and d is equal to 0. So we involve all those two cases together. That gives d is greater than equal to 0. And if roots are imaginary, then you know d should be less than 0. If d is less than 0, roots are imaginary. So I am talking of vice versa condition of all those which I have taught in previous lecture. Roots are unreal, then you will put d is less than 0, and then you find the value of the constant which they want. Now I have finished all the theoretical aspect of this chapter. Now it's better to go on exercises and see. Each exercises include some important sums. So I'll discuss the sums from exercise 1 onwards, and we'll try to discuss to solve these equations one by one. I think अभी तक की जो पढ़ाई है वो आपको शायद समझ में आ गया हो, बिकॉज थियोरेटिकल पार्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो हमने डिस्कस कर लिया है। जो पहला क्वेश्चन जो बहुत ही छोटा सा एक नंबर का आ सकता है, वो आपसे पूछेगा, एक्सरसाइज 4.1 को मैं ले रहा हूं कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस the topic which I had already discussed with you. It says question number 7 of NCERT 4.1.
to exercise. Here it says, is this a quadratic equation or not? So as you know, quadratic इक्वेशन तभी होगा जब उसका डिग्री 2 होगा, लेकिन यहाँ मैंने एक फॉर्मूला यूज करना है और इसे सिंप्लीफाई पहले करना है, बिकॉज हम डिसाइड तब कर पाते हैं जब हम इस इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में ले आते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको दिख रहा है। तो हमने जैसा पहले कहा था आपको कि अगले स्टेप में हम ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ये ए क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3a इंटू b² और प्लस बी क्यूब ऐसा कुछ आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2x² माइनस 2 इस साइड में आएगा। आगे अगर चलते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 6x² और प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 2x² माइनस 2 आ रहा है। अब जैसा कि सिस्टम है, टोटल सारे पार्ट को एक तरफ लाने की कोशिश करिए। अगला स्टेप आपको आ रहा है एक्स क्यूब, 6x² में से 2x² अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4x², 12x ऑलरेडी यहाँ है और 8 प्लस 2 10 बन जाएगा। राइट साइड में कुछ नहीं बचेगा। अभी जो इक्वेशन है उसकी डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मुझे 3 दिख रहा है। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। हम कहेंगे सिंस द इक्वेशन हैज डिग्री 3, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 पर सिमटना चाहिए, बट यहाँ ये 3 हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, डिग्री 3 का इक्वेशन is not a quadratic equation. It is not a quadratic equation. ये quadratic equation नहीं हो सकता। कारण क्या है कि इसकी डिग्री 2 नहीं है। करने के लिए तो मैं सारे सम्स अटेम्प्ट कर दूं, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है उसी को डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि अभी का टाइम हर चीज को डिस्कस करने का नहीं बचा हुआ है। और एक मैं 8th क्वेश्चन इसका लेता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इस लिमिटेड 4 और 5 लेक्चर्स के अंदर जितने भी अच्छे सवाल हैं उनको डिस्कस कर लूं। ये मेरे सेकंड क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, ये 8th सम है 4.1 एक्सरसाइज का। यहाँ भी वही चीज आपसे पूछा गया, बट मैं वो सारे इक्वेशन ले रहा हूं जिसमें क्यूब का फॉर्मूला इन्वॉल्व है। इसको अगर आगे बढ़ाऊं तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 ही रहने दूंगा। यहाँ बनेगा a का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² और यहाँ पर निगेटिव b क्यूब बनता है। अल्टरनेट प्लस माइनस इस फॉर्मूले में आता है, तो -2 का क्यूब लिख सकता हूँ। अगले स्टेप को लेफ्ट में मुझे कुछ नहीं करना है, अभी एज इट इज रखना है। और मैंने कहा हर बार आपको कैसे फॉर्म में लाना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो ये 6x² मुझे दिख रहा है, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है उस फॉर्म में लाने के लिए मुझे सिंप्लीफाई करके सबको एक तरफ लाना पड़ेगा और इसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसा मैं देख रहा हूँ ये 12x आ रहा है और -8 आ रहा है। सो अगर मैं इन सबों को एक तरफ कर लूँ तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0 आता है। एक्स क्यूब मेरा एक्स क्यूब से कट जाता है, 6x² में से 4x² 2x² आएगा, माइनस 13x आएगा, प्लस 9 इक्वल टू 0 आया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया और ये भी दिख रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। हमें डिग्री इस इक्वेशन की ऊपर वाले की क्या दिखती है,
टू दिखती है। सिंस डिग्री टू का इक्वेशन है, हेंस पिछला वाला तो नहीं था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सवाल ज्यादा मार्क्स का नहीं होगा, इसीलिए मैं इतना एम्फेसाइज इसको नहीं कर रहा हूं। कहीं ना कहीं आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तब तक आप इसे पॉन्डर करें। मैं 1 सेकेंड आपका लेना चाहूंगा, टाइम देता हूं, आप थोड़ा देख लें इस सवाल को। हाँ जी। नहीं, मैं तो फ्री नहीं हूँ, पर देख लेता हूँ। ठीक है।